Students, we are continuing MCQ based on case scenario. So this case scenario is based on asset recognition and the major topic is cover in the AS 16 property, plant and equipment. So let us say data given in this scenario. So we are given on 1st May of current financial year, Sanskar Limited purchased rupees 42 lakhs worth of land for construction of a new warehouse for stocking new products. The land purchase has an old temporary structure which was to be demolished for the purpose of construction of a warehouse. The salvaged material from the demolition was to be sold as scrap. The company started the construction work of the warehouse on 1st June of current financial year. The following costs were incurred by the company with regard to purchase of land and construction of warehouse. तो मेंशन किया है आपको कंपनी ने एक लैंड परचेज किया है 1 मई में और फिर इसके ऊपर हमने एक वेयर हाउस की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है। तो अब आपकी एक्सपेंसिव हो रही है रिलेटेड विद लैंड एंड वेयर हाउस। लीगल फीस फॉर परचेज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लैंड एंड रिकॉर्डिंग ओनरशिप, आर्किटेक्ट एंड कंसल्टेंट फीस, कॉस्ट ऑफ डिमोलिशिंग एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑन द परचेज लैंड, site preparation charge for the warehouse, purchase of cement and other materials for construction including GST of 1 lakh and GST credit is 50% of payment, employment cost of the construction workers and general overhead costs which are allocated to construction work 30,000 per month, overhead cost incurred directly on the construction of warehouse 35,000 per month। तो कुछ ओवरहेड्स हमने एलोकेट किए हैं, कुछ हमारे डायरेक्टली इससे रिलेटेड हैं। इनकम रिसीव फ्रॉम लैंड विच इज यूज्ड एज टेम्परेरी पार्किंग ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन फेज, दिस इज नॉट नेसेसरी टू कंस्ट्रक्शन। तो जैसे लैंड आपकी वेकेंट पड़ी थी कुछ टाइम के लिए तो उसको आपने एज ए पार्किंग यूज कर लिया है। एंड देन एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज गिवन, receipt of 35,000 being proceeds from sale of salvaged and scrap material from demolition of existing structure। तो जो आपने लैंड के ऊपर एक स्ट्रक्चर था हमारा उसको हमने डिमोलिश कर दिया है, उससे जो स्क्रैप रिलाई हो रहा है दिस इज गिवन। मटीरियल्स कॉस्टिंग रुपये 40,000 was wasted and further 1,20,000 was spent to rectify the wrong design work due to abnormal regions। तो कुछ मटीरियल जो आपने परचेज किया है उसमें से वेस्ट हो गया है और कुछ हमें फर्दर मटीरियल एक्सपेंडिचर इंकर करना पड़ता है for our rectification of a wrong design due to abnormal regions। The employment costs are for 10 months from 1st June to 31st March। Construction of factory was completed on 28th February, which is considered as a substantial period of time as per Ind AS 23। कंस्ट्रक्शन आपकी कंप्लीट हो गई है जिस इज ऑन 28th February of our financial year। And the use of warehouse commenced on 1st March of this current financial year, and the overall use of factory building was estimated at useful life जैसे 25 years from date of completion है। तो लाइफ हमने एस्टिमेट की है फैक्ट्री के वेयर हाउस से 25 year from date of completion। However, it is estimated that the roof of the warehouse will need to be replaced 15 years है, पर जो रूफ है उसकी रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी आपको आफ्टर एवरी 15 years आफ्टर डेट ऑफ कंप्लीशन एंड गेट द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग द रूफ एट करंट प्राइसेस विल बी 25% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। तो उसमें किसी का जो कंपोनेंट्स, अब बिल्डिंग के आपके दो कंपोनेंट्स हैं, एक रूफ है और एक हमारी अदर कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर है जिसकी लाइफ आपको इक्वल अनइक्वल की है, एक की 25 year है एक की 15 year है। तो उसमें हम डेप्रिसिएशन सेपरेटली चार्ज करेंगे विच इज कॉल्ड कंपोनेंट अप्रोच टू डेप्रिसिएशन। फर्दर इट इज गिवन एट द एंड ऑफ 25th year पीरियड संस्कार लिमिटेड लीगली बाउंड टू डिमोलिश द फैक्ट्री एंड रीस्टोर द साइट टू द ओरिजिनल कंडीशन। फिर आपने डिमोलिशन करनी है फैक्ट्री की आफ्टर 25 year। डायरेक्टर्स होगा कंपनी एस्टिमेट दैट कॉस्ट ऑफ डिमोलिशन इन 25 year टाइम बेस्ड ऑन प्राइसेस प्रिवेलिंग एट दैट टाइम विल बी 80 lakhs। उस टाइम आपकी कॉस्ट पड़ेगी डिमोलिशन की जो आपने स्ट्रक्चर डिमोलिश करके उसको रीस्टोर करना है 80 lakhs रुपये की। एंड एनुअल रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट विच इज एप्रोप्रिएट टू दिस प्रोजेक्ट विल 10% per annum। प्रेजेंट वैल्यू और for 25 year of ₹1 at 10% per annum is 0.092। तो जो डिमोलिशन की कॉस्ट है और 25 year के बाद आपने इनकर करनी है उसके लिए हमें पीवी फैक्टर किया है।
Further, it is given Sanskar Limited raised the loan of rupees 60 lakhs aggregate को 10% rate of interest on 1st June of financial year. The building of warehouse meets definition of qualifying asset as per AS 23, which is borrowing costs. Sanskar Limited received an investment income of 25,000 on the temporary investment of proceeds. So assume that cost of demolition of all the structure is directly attributable to the cost of land. तो जो आपने पुराना स्ट्रक्चर डिमोलिश किया है वो लैंड से रिलेटेड है आपका. द कंपनी फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन. फिर अब आपके पास देखो डिफरेंट एमसीक्यू है. नंबर 1, वी हैव टू डिटरमिन कॉस्ट ऑफ लैंड टू बी कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ द संस्कार लिमिटेड. तो सबसे पहले आपने देखना है लैंड की कितनी कॉस्ट हमने कैपिटलाइज करनी है. देन सेकंड, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेयर हाउस. अब जो आप बिल्डिंग बना रहे हैं वेयर हाउस, उसकी कितनी कॉस्ट है जो आपने कैपिटलाइज करनी है अपनी बुक्स में. तो स्टार्ट करते हैं. देखो डाटा दिया है हमें जिस कंपनी के संस्कार लिमिटेड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका है करंट फाइनेंशियल ईयर. फाइनेंशियल ईयर ऑन 1 मई सबसे पहले आपने लैंड परचेज की है एज ऑन 1 मई. ऑन दिस डेट लैंड इज परचेज. देन वी आर गिवन डेट. सो फ्रॉम अवर 1 जून फिर आपने इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की है वेयर हाउस की. दिस इज ऑन 1 जून. सो वेयर हाउस कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड. फिर आपको एक्सपेंसिव मेंशन किए हैं लैंड एंड कंस्ट्रक्शन के. एंड फर्दर की गिवन डेट कि जो आपकी कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो गई है 28 फरवरी. करंट ईयर चल रहा है आपका. कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड ऑन 28 फरवरी. दिस कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड. तो ईयर एंड हो रहा है अब आपका 31 मार्च. डिफरेंट एक्सपेंसिव आपको मेंशन किए हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एमसीक्यू नंबर 1, we have to determine what is the cost of land to be capitalized. So in books of Sanskar Limited. तो आप देखिए कॉस्ट ऑफ लैंड में फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गिवन डेट कि आपने लैंड जो परचेज किया है जिस जो 42 लैक्स है. तो इट मीन्स इसमें हम परचेज कॉस्ट ऐड कर देंगे जो लैंड की आपको मेंशन की है. फिर एक आपको जो मेंशन किया है इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है पुराना, उसको हमने डिमोलिश करना है. तो उसकी जो कॉस्ट पड़ेगी वो भी हमारी लैंड से ही रिलेटेड है. इट इज गिवन टू अस दैट जो आपका डिमोलिशन का दिस वाज रिलेटेड विद अवर लैंड. तो उसमें ऐड कर दीजिए कॉस्ट ऑफ डिमोलिशन ऑफ अवर ओल्ड स्ट्रक्चर ऑन लैंड. फिर उससे रिलेटेड अब आपको मेंशन ये भी किए हैं कुछ आपके लीगल एक्सपेंसेस हो रहे हैं फॉर परचेज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लैंड एंड रिकॉर्डिंग ओनरशिप. तो जो लीगल एक्सपेंसेस हैं वो कैपिटलाइज हो जाएंगे. और एक आपको मेंशन किया जब आप डिमोलिशन कर रहे हैं उससे कुछ आपको स्क्रैप रिलाइज हो रही है तो वो हमारी डिमोलिशन की स्क्रैप जो है वो माइनस हो जाएगी. माइनस स्क्रैप फ्रॉम डिमोलिशन. और प्लस कर दीजिए आप लीगल एक्सपेंसेस विच आर नेसेसरी टू रिकॉर्ड ओनरशिप ऑफ लैंड. ये आपकी टोटल कॉस्ट मानी जाएगी लैंड की. सो लेट अस से हाउ मच इज दिस 42 लाख आपकी है परचेज कॉस्ट. फिर आपको मेंशन किए हैं कॉस्ट ऑफ डेमोलिशन. ये आपको मेंशन की है 1,35,000 विच इज रिलेटेड विद लैंड. फिर आपको स्क्रैप रिलाइज हो रही है फ्रॉम डिमोलिशन से. वर्किंग नोट में दी है आपको एडिशन परमिशन में 35,000. तो इट मीन्स ये आपकी माइनस हो जाएगी. और प्लस आपने करनी है लीगल एक्सपेंसिव विच आर इनकर्ड दिस इज 1,50,000. इट मीन दिस विल बी टोटल कॉस्ट ऑफ लैंड. अमाउंट्स आ जाएगा आपका रुपीज में. तो दिस यू कैन सी 42 + 1 43 + 1 44 लाख. तो इट मीन्स टोटल कॉस्ट ऑफ लैंड टू बी कैपिटलाइज इज रुपी 44,50,000. नाउ यू कैन सी विच ऑप्शन इज करेक्ट. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. Next we have second MCQ. So we have to compute cost of construction of warehouse of Sanskar Limited for current financial year. तो अब आपको इसको कैलकुलेट करनी है what is the cost of construction of warehouse. तो उसके लिए देखिए आपके जो जो एक्सपेंसिव हैं जो आपने कैपिटलाइज करने हैं. तो दिस विल बी फ्रॉम 1 जून टू 28 फरवरी. तो ये टोटल पीरियड आपका मिल रहे हैं 9 मंथ्स का. तो इस पीरियड के जो एक्सपेंसिव हैं वो आपके कैपिटलाइज हो जाएंगे.
तो सबसे पहले देखो आपको मेंशन किया है आर्किटेक्ट फीस है आपकी, यानी कि जो साइट प्रिपरेशन चार्जेज हैं फॉर वेयर हाउस, परचेज ऑफ सीमेंट हैं, एंड अगर मटेरियल इसमें जीएसटी इंक्लूड है 50% का जिसका क्रेडिट मिल जाएगा। तो एम्प्लॉयमेंट की कॉस्ट हैं, फिर आपको फर्दर इंफॉर्मेशन दी है एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट आर फॉर 10 मंथ्स हैं फ्रॉम जून टू मार्च, पर हमें कैपिटलाइज करनी है ओनली 9 मंथ्स की, जून टू फरवरी। फिर आपको जनरल ओवरहेड्स हमने एलोकेट कर रखे हैं, ये हम कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, एलोकेटेड हैं क्योंकि जो डायरेक्टली रिलेटेड ओवरहेड कॉस्ट हैं वो हमारी कैपिटलाइज हो जाएंगी, और जो इनकम रिसीव हो रही है उसको कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे। किसी तो रिलेटेड कंस्ट्रक्शन विच इज फ्रॉम यूज ऑफ लैंड फॉर पार्किंग पर्पज, और आपका यूज स्टार्ट हो रहा है वेयर हाउस का 1 मार्च। फिर आपको फर्दर मेंशन किया है कि आपकी डिमोलिशन की कॉस्ट है आफ्टर 25 ईयर, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वो कैपिटलाइज हो जाएगी, और एक आपने लोन ले रखा है उसका इंटरेस्ट भी कैपिटलाइज हो जाएगा फॉर 9 मंथ्स है। तो स्टार्ट करके हैं वन बाय वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अवर आर्किटेक्ट फी, देन सेकंड अवर एक्सपेंसेस आर दिस इज साइट प्रिपरेशन चार्जेज, यानी कि जो परचेज ऑफ सीमेंट एंड अदर मटेरियल, तो इसमें ये आपका मेन रॉ मटेरियल है सीमेंट एंड मटेरियल्स। देन वी हैव अवर एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट्स, ये आपके एम्प्लॉय कॉस्ट्स हैं, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट्स ऑफ वर्कर्स। देन वी हैव डायरेक्टली रिलेटेड ओवरहेड्स, और एक आपको मेंशन किए हैं ओवरहेड्स विच आर एलोकेटेड, तो एलोकेटेड हम कंसीडर नहीं करेंगे। एंड देयर इज अवर फर्दर मटेरियल आपने कुछ परचेज किया है फॉर रेक्टिफिकेशन, so material for rectification of design, and this is ड्यू टू नॉर्मल डिजाइन, तो इसमें ये भी हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे। फर्दर आपको मेंशन किया है यानी कि अवर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिमोलिशन कॉस्ट, एंड देन वी हैव अनदर वन इज इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि डिमोलिशन आपने करनी है और ये रिस्टोरेशन, तो ये होगी आपकी आफ्टर 25 ईयर, उसकी कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू। तो लेके से हाउ मच इज आर्किटेक्ट फीस, आर्किटेक्ट फीस देखो आपको मेंशन की है 2,70,000, अमाउंट्स हैं आपकी रुपीज़ में। देन साइट प्रिपरेशन चार्जेज ये आपको मेंशन किए हैं 1 लाख। देन सीमेंट एंड मटीरियल्स, इसमें जीएसटी भी देखो इंक्लूड है जिसका 50% आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो इसमें सीमेंट एंड मटीरियल्स हैं आपके 15 लाख, जीएसटी इसमें 1 लाख, उसमें से माइनस करना है अपने 50,000। तो फिर आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मेंशन किया है, कुछ मटेरियल आपका 40,000 का वेस्ट हो गया था, वो मीन्स वो भी इंक्लूड है इसमें -40,000, तो रिमेनिंग रह जाएगा आपका 14,10,000 मटेरियल। बट अबाउट अवर जो फर्दर आपके मटेरियल्स हैं जो आपने यूज़ किए हैं फॉर रेक्टिफिकेशन पर्पज के लिए, तो वो आपके कैपिटलाइज नहीं होंगे। फर्दर आपको जो मेंशन किए हैं एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट है 8 लाख से, दिस इज 8 लाख। अब ये है 10 महीने की, पर हमें चाहिए 9 मंथ्स की, ये आपने निकल किया है जून टू मार्च, बट वी हैव टू कैपिटलाइज ओनली अप टू फरवरी, तो इट मीन्स ये टोटल बन जाएगी आपकी 7,20,000 एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट। ओवरहेड्स आपको लेने हैं डायरेक्टली रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन, ये है 35,000 पर मंथ, और आपके जो टोटल मंथ्स बन रहे हैं दिस इज ओनली 9 जो आपने कैपिटलाइज करने हैं जून टू फरवरी, दिस इज 35 इंटू 9 315, और जो एलोकेटेड हैं ये हम कंसीडर नहीं करेंगे, रेक्टिफिकेशन की मटेरियल कॉस्ट भी कंसीडर नहीं होगी। अब आपको डिमोलिशन की देखो कॉस्ट मेंशन की है अब इसमें, दिस इज गिवन टू अस, दिस विल बी 80 लाख आफ्टर 25 ईयर, तो इसकी कैलकुलेट कीजिए प्रेजेंट वैल्यू, तो 80 लाख, और इसका पीवी फैक्टर आपको दिया है, जो कंपनी का रिस्क है जिसकी डिस्काउंट रेट है वो 10% है, उसका पीवी फैक्टर है 0.092, तो दिस इज 80 लैक्स इंटू 0.092 736,000। देन वी हैव इंटरेस्ट ऑन लोन, तो लोन देखिए आपने लिया है 60 लैक्स का ऑन 1 जून, तो इट मीन्स ऑन दिस इंटरेस्ट विल बी ऑन 60 लैक्स, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मेंशन किया है जिसे 10% फॉर 9 मंथ्स ओनली, तो जून से लेके फरवरी तक का इंटरेस्ट आपका कैपिटलाइज हो जाएगा, तो दिस इज अवर 6 लाख
So into 9 divided by 12, 4,50,000. तो फर्दर आपको मेंशन किया है कि ये जो लोन आपने लिए हैं तो कुछ टाइम के लिए आपने इसको सरप्लस फंड्स के उसको इन्वेस्ट कर दिया था, उससे आपको मिल रही है इन्वेस्टमेंट इनकम 25,000 फ्रॉम टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट। तो जो आपकी इनकम है वो आपकी लेस हो जाएगी इंटरेस्ट कोस्ट में से, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस फंड दिस इज 25,000। नाउ दिस विल बी अवर टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वेयर हाउस जो आपको कैपिटलाइज करनी है। So let us see how much is this. This is 270 plus 1 3,70,000 plus 14,10,000 plus 7,20,000 plus 315,000 plus 736,000 plus 450 minus 25. So this total amount is 39,76,000 will be our cost of construction of a warehouse to be capitalized in books. So now you can see which option is correct. So correct option is option number C. So next we have third MCQ. So we have to compute the depreciation charge for the current financial year ending 31st March. अब आपको इनको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए देखिए पहले अभी आपके पास टोटल जो कॉस्ट है ऑफ वेयर हाउस, तो दिस वी हैव कैलकुलेटेड, तो दिस इज कैलकुलेट किया गया 39,76,000। अब ये जो वेयर हाउस की बिल्डिंग है, अब इसमें दो कंपोनेंट्स हैं आपके, तो वी हैव टू कंपोनेंट्स, तो उन्हें हमें सेपरेट करना पड़ेगा। नंबर 1 कंपोनेंट है आपका रूफ ऑफ वेयर हाउस एंड इट इज गिवन दैट सो इट्स कॉस्ट इज 25% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ वेयर हाउस एट करंट प्राइस। तो इट मीन्स इसकी कॉस्ट कैलकुलेट कीजिए आप 25% ऑफ 39,76,000। So this amount is coming 39,76 into 25%, this is 9,94,000। तो बैलेंस रह जाएगा आपका सेकंड कंपोनेंट, दिस इज अवर बिल्डिंग ऑफ वेयर हाउस, इसमें जिसे रिमेनिंग 75%, दिस अमाउंट इज 29,82। तो ये हमने सेपरेट इसलिए किया है क्योंकि अब आपकी जो रूफ है उसकी लाइफ है एस्टिमेटेड 15 ईयर और बिल्डिंग की लाइफ है आपकी एस्टिमेटेड 25 ईयर्स। अब आप डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए, आपने अप्लाई करनी है डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, तो इट मीन्स इसको हम डिवाइड करेंगे रूफ को 15 ईयर से एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 25 ईयर, तो ये पर एनम डेप्रिसिएशन आ जाएगी। बट इस साल में आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है ओनली फॉर 1 मंथ, तो उसको कर लीजिए इंटू 1/12 into 1/12. So this will be depreciation charge for current financial year up to 31st March. So let us see how much it is. 9,94,000 divided by 15 and divided by 12. So this amount is 55,522. तो अमाउंट है आपकी रुपीज में। नेक्स्ट is 29,82,000. This is divided by 25 and divided by 12. So this amount is 9,940. It means total depreciation charge for current year will be rupees 15,462. Now you can see which option is correct. Answer is option A is correct. Next we have fourth MCQ. They are asking calculate carrying value of warehouse to be taken to balance sheet at the end of current financial year on 31st March. तो अब देखते हैं आपका कैरिंग अमाउंट कितने हैं MCQ 4 में। तो दिस इज अवर वैल्यू ऑफ वेयर हाउस, दिस इज ऑन 31st March एंड दिस इज फॉर बैलेंस शीट पर्पज। दिस इज क्वाइट सिंपल, जो टोटल कॉस्ट आपने कैपिटलाइज की थी उसमें से आप अपनी डेप्रिसिएशन माइनस कर लीजिए 39,76,000 माइनस 15,460। तो बैलेंस शीट में आपको जो दोनों कंपोनेंट्स हैं वो कंबाइन ही दिखानी है, सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, पर डेप्रिसिएशन के लिए हमने सेपरेट कर दिया है। तो दिस अमाउंट की कमिंग 39,76,000 माइनस 15,462, तो दिस इज रुपीज 39,60 to 538. So now you can see which option is correct. Answer is option number B.
So option B is correct. So in this lecture we have discussed a case scenario based on property Planck and Keating under Ind AS 16. बाकी टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।